Good morning, everyone. So let's start the today's session. Today we'll be just discussing on the heat load calculation. That what exactly heat load calculation is. Heat load calculation क्या होता है? What are the things that we need to consider during the any heat load calculation? That is what we'll be discussing in today's session. Okay, so let's start with the session content. So what exactly the heat load calculation is? Anyone have any idea that what is heat load calculation? Anyone have if any idea that what exactly heat load calculation is? Heat load calculation क्या होता है? Thermo heat. See, basically heat load calculation is what? Today I'll be just using the writing part to discuss in detail. That is heat load calculation. It is a process through which so heat load calculation. So it is a process through which all the necessary. It is a process through which cooling or heating capacity is determined. Very simple. That how much cooling capacity it is required in any air conditioning in any room, or how much heating capacity. By name, it is represented by a heat load calculation, but it is not as if कि सिर्फ और सिर्फ इसमें heat की requirement आप निकालते हैं, इसमें cooling requirement भी निकालते हैं. How much cooling capacity is required. So it is a process through which it is a process through which heating or cooling capacity is determined. एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं. किसी भी रूम के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर कितनी हीटिंग रिक्वायरमेंट है या कितनी कूलिंग रिक्वायरमेंट है, ये इस प्रोसेस को डिटरमाइन करने का हम लोग कहते हैं हीट लोड कैलकुलेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप समर के केस में अगर स्प्लिट एसी या विंडो एसी लेके आते हैं, तो दैट कम्स इन अ कैपेसिटी. आप एक कैपेसिटी में लेके आते हैं, दैट इज फॉर 1 टीआर 2 टीआर 3 टीआर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो इसकी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर, उस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं. Methods of heat load calculation क्या? What are the methods of heat load calculation? Very important things that we are discussing today. So that is methods of heat load calculation. Heat load calculation. कितने तरीके से heat load calculation, किस किस मेथड से हम लोग करते हैं heat load calculation? Let us see here. Number one that we have, that is your manual design. Manual design. So manual design, this is basically your E20 sheet. E20 सीट है, और E20 सीट क्या होता है? एक्सेल के ऊपर हम लोग करते हैं. ठीक है. मैनुअल डिजाइन मतलब कि we can just do all the calculations using the formula, and from there we can determine the how much cooling or heating capacity is required. Is a process through which heating or cooling capacity is determined. Heating or cooling capacity is determined. ठीक है. दूसरा जो मेथड है, the second method that we have, that is your software based. सॉफ्टवेयर बेस्ड है. इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी हीटिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड है या कितनी कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड है. तो वो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? लेट अस सी है. नंबर वन दैट वी हैव, दैट इज योर हैप सॉफ्टवेयर, आवरली एनालिसिस प्रोग्राम. आवरली एनालिसिस program
दूसरा सॉफ्टवेयर जो है दैट इज योर ट्रेस सॉफ्टवेयर विच इज ट्रीटेड एज ट्रेस 700. Third one, the software that we will be using, it is your Elite, ELIT, Elite. And the fourth one that we have, that is your Havacom. ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये हैप सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज, एंड दिस इज डेवलप्ड बाय कैरियर। कैरियर एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। कैरियर ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। ट्रेस जो है इट इज डेवलप्ड बाय ट्रेस सॉफ्टवेयर इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय ट्रेन सॉफ्टवेयर से ट्रेन कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, दैट इज योर ट्रेस सॉफ्टवेयर। Elite, it is developed by Macquarie. Developed by Macquarie की जो पेरेंट कंपनी है वो डाइकिन है। सो यू जस्ट नो, आप इन सारे ब्रांड का नाम तो जरूर सुना होगा आपने, डाइकिन का नाम, ट्रेन का नाम और कैरियर का नाम, ठीक है। सो Havacomp is what? Havacomp is something which is developed by Bentley. बेंटले ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। इन सब में सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, सो दिस वन इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर। सो दिस इज योर मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। सो मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर जो है वो हैप सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिजाइन हम लोग करते हैं E20 सीट में, इट इज डिजाइन फॉर पीक कंडीशन। सो दिस इज फॉर डिजाइन फॉर पीक कंडीशन, दैट इज फॉर मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं कि वो सिनेरियो में क्या सबसे खराब जो कंडीशन होगा, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा बाहर का, उसके लिए ऑल दिस सॉफ्टवेयर, ऑल द अबव सॉफ्टवेयर इट इज डिजाइन फॉर आवरली बेसिस। all above softwares are designed for hourly basis calculation, for hourly basis calculation। hourly basis calculation के लिए हम लोग ये सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेथड हो गए जिससे हम लोग हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। अब टाइप्स ऑफ हीट लोड कैलकुलेशन देखते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर टाइप्स ऑफ हीट लोड कैलकुलेशन। कितने टाइप्स का हीट लोड कैलकुलेशन हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इट इज योर हीट लोड कैलकुलेशन जो है वो कितने तरीके से किया जाता है। इट इज डन फॉर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन दैट वी हैव दैट इज योर सीजन वाइज। द फर्स्ट वन इट इज योर सीजन वाइज। सो ये जो है पहला सीजन वाइज हम लोग करते हैं। सीजन वाइज में व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग इन सीजन वाइज, आइदर हम जो कैलकुलेशन है वो आइदर वी आर डूइंग इट फॉर समर के लिए करेंगे या मानसून के लिए करेंगे।
या विंटर के लिए करेंगे। सो इनमें से किसी एक सीजन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। समर और मानसून के केस में क्या हो, इन केस ऑफ समर एंड मानसून, इन केस ऑफ समर एंड मानसून विल बी जस्ट डूइंग द, इस केस में हम लोग कूलिंग करेंगे। और विंटर के केस में व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, इन केस ऑफ विंटर वी विल बी जस्ट डूइंग द हीटिंग। विंटर के केस में हम लोग हीटिंग करेंगे, विंटर के केस में हीटिंग करेंगे। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज योर थ्रू आउट द ईयर एयर कंडीशनिंग, थ्रू आउट द ईयर एयर कंडीशनिंग, पूरे साल का एयर कंडीशनिंग जो हम लोग करते हैं वो, जैसे जनरली जो हाउस होल्ड में एयर कंडीशनिंग किया जाता है, घरों के अंदर जो एयर कंडीशनिंग किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए कर रहे हैं, तो आइदर हम ठंडी जगह पे, जैसे इफ यू गो इनटू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो देयर विल बी जस्ट डूइंग ओनली हीटिंग, एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर देयर इज एक्सट्रीम हॉट इज देयर, सो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कूलिंग करते हैं। तो या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, बट कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको पूरे साल एयर कंडीशनिंग करना है, दैट इज थ्रू आउट द एयर कंडीशनिंग। सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, तीनों सीजन का कैलकुलेशन करना होगा। तो वी हैव टू डू अ कैलकुलेशन फॉर समर, then we have to do a calculation for monsoon, and then we have to do a calculation for विंटर। तो हमें समर का भी करना है, मानसून का भी करना है, विंटर का भी करना है। देन ओनली वी केम टू नो कि हमें क्या कैपेसिटी लगानी है। तो दोनों तरह का सिस्टम हमें लगाना होगा, हीटिंग और कूलिंग मोड दोनों तरह का सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रिफर करेंगे। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज इज समथिंग डिफरेंट मिस्टर विशाल वर्मा। कोल्ड स्टोरेज इज समथिंग जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखने के लिए जो हम क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज ऑफ एयर कंडीशनिंग में, वहां पे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ हीट लोड कैलकुलेशन हो गया। ठीक है। लेट अस मूव अहेड, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द रेफरेंसेस दैट वी मस्ट यूज। सो रेफरेंसेस, इट इज दैट हीट लोड थिंग्स मींस हीट लोड कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, व्हाट आर सो बिल्डिंग सर्वे इट इज डन प्रायर टू हीट लोड कैलकुलेशन, बिल्डिंग बिल्डिंग सर्वे is done prior to the heat load calculation. Heat load calculation, no exactly, these not are the formula, these are the types कि आपको एक तो हीट लोड कैलकुलेशन है एक पर्टिकुलर सीजन के लिए करना है, या तो आपको हीट लोड कैलकुलेशन जो है वो किसी पूरे साल के लिए करना है। पूरे साल के लिए करना है तो आपको समर का भी कैलकुलेशन करना है, मानसून का भी करना है, विंटर का भी करना है। जैसे कि these softwares are there, so these softwares they will just give the calculation for the entire year, that is your hourly analysis program, and it gives us the value for the entire year, so it gives the value for the cooling as well as the heating। बट इस केस में अगर E20 सीट पे आप करते हैं तो आपको या तो कूलिंग के लिए अलग सेपरेट कैलकुलेशन है, हीटिंग के लिए देयर इज अ सेपरेट कैलकुलेशन। सो बिल्डिंग सर्वे इज डन प्रायर टू द हीट लोड कैलकुलेशन, हीट लोड कैलकुलेशन। बिल्डिंग सर्वे किया जाता है हीट लोड कैलकुलेशन से पहले। सो बिल्डिंग सर्वे क्या होता है, बिल्डिंग सर्वे इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच, a process through which a process through which all necessary information or data required for heat load calculation
heat load calculation is collected or gathered तो मतलब क्या हो गया कि हीट लोड कैलकुलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन है या डेटा है जो हीट लोड कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है उसे हम कलेक्ट करेंगे एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द बिल्डिंग सर्वे इज। इसे हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग सर्वे कहते हैं। ठीक है, यही हमें हीट बिल्डिंग सर्वे कहलाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि हीट लोड कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे। रूम के अंदर जितने भी हीट जनरेट्स हो रहे हैं, that is basically we will try to calculate that. So दो तरीके का हीट जनरेशन हो रहा। Let's see here. Heat generation inside the room. Heat generation ask relevant questions which is relevant to the heat load calculation. Sir, parameters required for building surveying, that is something के जो डिटेल हमें हीट लोड कैलकुलेशन के लिए नेसेसरी है उस डिटेल या उस डेटा का कलेक्शन करना या गैदर करना, यही आपका बिल्डिंग सर्वे कहलाता है। इट इज नॉट सर्वेइंग पार्ट। लैंड सर्वेइंग नहीं हो रहा है। ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब उसके बाद उसमें एयर कंडीशनिंग करना है। सो वो सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन या डेटा का कलेक्शन जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं। अब वो डेटा क्या हो सकता है? उसमें डेटा मटेरियल हो सकता है, किस मटेरियल का वॉल बना है, ग्लास किस टाइप का है, रूफ किस तरीके का, सीलिंग कैसा है, कितने लोग उसके अंदर होंगे, किस तरह का एप्लीकेशन होगा, लाइट कितना लगेगा, इक्विपमेंट्स कौन से होंगे। तो ये सारी चीजों का डेटा का कलेक्शन करना, ये आपका बिल्डिंग सर्वे कहलाता है। ओके, if those who are absent in the last session, you can just go through the earlier sessions. Every session it is available on the YouTube. We are uploading it on the YouTube, so you can go through that. ठीक है, बिल्डिंग सर्वे में ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल बिकॉज वी हैव सम टाइम स्लॉट आल्सो, तो उसके कारण I have to keep it in short and precise way. So heat generation inside the room. Heat generation, or we can say it as a heat load calculation of any room. Let us try to calculate heat load calculation of any room. किसी भी रूम का एक हीट लोड कैलकुलेशन कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स है। यहाँ से आपको वो भी पता चल जाएगा कौन से डिटेल्स यू नीड टू थिंक। लेट अस सी वन एलिवेशनल व्यू। एक एलिवेशनल व्यू देखते हैं उसके बाद। सो दिस इज योर रूम, दिस इज योर एलिवेशनल व्यू। एलिवेशनल व्यू है। सो इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ये लगा लिया, आपका ये छत है, दिस इज योर स्लैब। सो दिस वन इट इज योर स्लैब। नाउ लेट अस टेक सम वॉल आल्सो। ये आपका वॉल हो गया। सो दिस इज आल्सो योर वॉल। उसके बाद आपने क्या किया, एक फ्लोर बना लिया। सो दिस इज योर फ्लोर। चलिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक विंडोज बना लेते हैं इसके अंदर। सपोज ये विंडो है एंड दिस इज योर डोर, दिस वन इट इज योर डोर।
ठीक है, लेट्स डू द नेमिंग। पहले नेमिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोड कैलकुलेशन करेंगे। द फर्स्ट वन दैट वी हैव, दिस इज योर रूफ, this one it is your floor, ये जो है आपका फ्लोर हो गया। दिस वन इट इज योर वॉल, दिस वन इट इज योर विंडो ग्लास, विंडो ग्लास, दिस वन इट इज योर डोर, ठीक है। नाउ सपोज हेयर इट इज योर सन, बाहर जो है ये आपको यहाँ पे सन है, तो सपोज दिस इज योर सन, तो सन का रे आपको यू कैन फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। सन का रे जो है यहाँ से लेके इस तरीके से ये पूरा रे इधर भी पड़ रहा है, ये एक तरफ से निकलेगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, उस तरीके से होगा। सो इन दैट केस यहाँ पे जो आपको हीट, सबसे पहले हीट जो दिखेगा कहाँ कहाँ से आएगा, दैट इज व्हाट वी बी ट्राइंग टू डिटरमाइन, यही हम डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूम के, ये जो हीट है वो वो हीट कैसे, किस किस तरीके से जनरेट होगा। सो वो जो जनरेट है, दो तरीके का हीट होगा। लेट्स ट्राई टू मेंशन हियर द हीट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड, हीट जनरेटेड इनसाइड द रूम, उसको मैं बाइफरकेट करके आपको बता रहा हूँ। हीट टोटल हीट जनरेशन, टोटल हीट जनरेशन जो है वो कहाँ से होगा, लेट्स सी है। टोटल हीट जनरेशन, दिस इज इक्वल टू heat generation by heat, that is your heat generation inside the room we can write it as room sensible heat, we can write it as room sensible heat plus room latent heat प्लस एक तो रूम का सेंसिबल हीट है, एक रूम का लेटेंट हीट है, प्लस आउटसाइड एयर लोड, ये मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, आउटसाइड एयर लोड, ठीक है। इट इज ऑल्सो लोड ऑन कॉइल, कॉइल के ऊपर जो लोड आएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। सो पहले अब रूम सेंसिबल हीट को देखते हैं कि रूम सेंसिबल हीट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इट इज योर रूम सेंसिबल हीट, रूम सेंसिबल हीट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें सबसे पहली चीज जो होती है, लेट्स गो बैक एंड सी द प्रीवियस स्लाइड। सबसे पहला चीज क्या है, सन का रे आपके ग्लास के ऊपर पड़ेगा, दिस इज योर विंडो ग्लास, दिस वन इट इज योर ग्लास, तो सन का रे ग्लास के ऊपर पड़ेगा, सो इट विल बी योर सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास। सो फर्स्ट वन दैट वी हैव, दैट इज योर सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास। So that is your solar heat gain through glass, solar heat gain
थ्रू ग्लास, ग्लास से कितना हीट जनरेट हो रहा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो सन का रे ग्लास के ऊपर पड़ रहा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पर। देखिए दिस वन सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास, ये हो गया। उसके बाद आते हैं सन का रे इस वॉल के ऊपर पड़ेगा और रूफ के ऊपर पड़ेगा, छत के ऊपर भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन दैट वी हैव दैट इज जो सोलर एंड ट्रांसमिशन। दो तरीके का हीट गेन होता है। एक तो वो हीट है जो सन का रे डायरेक्टली हमारे ग्लास के ऊपर पड़ा, ग्लास को हीट कर दिया। एक वो हीट है जो ग्लास से कुछ रे जो है ग्लास से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रे ग्लास को रिफ्रैक्ट करके ट्रांसमिट करके रूम के अंदर आ गया और रूम के अंदर ट्रैप हो गया। सो दैट इज बेसिकली योर ट्रांसमिशन हीट गेन। सो नेक्स्ट वन इट इज सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास। उसके बाद जो है दैट इज योर सोलर एंड, उसके बाद जो है दैट इज योर सोलर एंड ट्रांसमिशन हीट गेन थ्रू सोलर एंड ट्रांसमिशन हीट गेन थ्रू वॉल एंड रूफ, थ्रू वॉल एंड रूफ। वॉल और रूफ से कितना हीट जनरेट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा जो हीट जनरेशन हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस वन, इस वॉल की बात कर रहे हैं और ये रूफ की बात कर रहे हैं। तो सेकंड वन दैट वी हैव दैट इज योर वॉल एंड रूफ, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होगा दैट इज योर सोलर एंड ट्रांसमिशन हीट गेन। आपने ये कैलकुलेट कर लिया वॉल एंड रूफ। उसके बाद ट्रांसमिशन हीट गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ, ट्रांसमिशन हीट गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ, एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ। यहाँ पे आपने ग्लास का जो निकाला था वो सिर्फ और सिर्फ सोलर निकाला था, इसका ट्रांसमिशन नहीं निकाला था। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए फर्दर चार चीजें होंगी दैट इज योर ऑल ग्लास। सेकंड वन ऑल ग्लास मतलब जितने भी ग्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक ग्लास ये लगा हुआ, एक ग्लास इस साइड लगा हुआ। सो ऑल ग्लास के अंदर क्या आ जाएगा, जितने भी ग्लासेस है सबसे जो जितना भी ट्रांसमिशन हीट गेन हो रहा ये वही होगा जो सन के एक्सपोजर में होगा। सो सोलर ऑल transmission heat gain except wall and roof, so in that it comes your all glass, then partition। partition किसे कहते हैं, बेसिकली इन सिविल और आर्किटेक्चर के टर्म पे पार्टीशन उसे कहते हैं जो एक कॉमन एरिया को वन टू और टू मोर देन टू में डिवाइड करता है, दैट इज बेसिकली योर पार्टीशन। बट इन एचवीएसी इट इज द वॉल which divides AC and non-AC region, wall which divides AC and non-AC region, wall which divides AC and non-AC region। एसी और नॉन एसी रीजन को जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन वॉल कहते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस केस में पार्टीशन के केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये रूम है, इस रूम के जस्ट बगल में एक और रूम होता है वो नॉन एसी होता है। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, बीइंग ए नॉन एसी वहां पे टेम्परेचर हाई है और इस रूम में आप एसी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टेम्परेचर लो मेंटेन कर रहे हैं। और हीट ट्रांसफर का रूल ये कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इधर से ये नॉन एसी एरिया है तो इधर से ये हीट आ जाएगा, ठीक है। उस एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जो सन के एक्सपोजर में है, मैं उस एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे जस्ट रूम के एडजेसेंट में एक और रूम है और वो रूम जो है दैट इज द नॉन एसी रूम। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, जब वो नॉन एसी रूम है तो वहां से हीट ट्रांसफर होगा बिकॉज देयर द टेम्परेचर इज हाई। वहां पे टेम्परेचर हाई है और आप अपने रूम के अंदर विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनिंग यू आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, सो हीट विल ट्रांसफर। सो दैट इज बेसिकली योर पार्टीशन वॉल। तीसरा जो होगा इसके अंदर, the third one that we have that is your ceiling load। ceiling load क्या होगा, सेम चीज अभी जो हमने पार्टीशन के लिए कंसीडर किया, अगर इसके ऊपर एक फ्लोर होता तो रूफ और सीलिंग में डिफरेंस क्या है, रूफ इट इज फॉर द टॉप फ्लोर, सीलिंग के हमारे ऊपर एक फ्लोर है और वो फ्लोर नॉन एसी है, ठीक है। तो अगर वो नॉन एसी हो गया तो मुझे ऊपर से हीट आ जाएगा, सो वी विल बी हैविंग ए हीट फ्रॉम हेयर। इफ देयर इज वन फ्लोर इज हेयर, यहाँ पे अगर एक फ्लोर होता है इस तरीके से आपको एक फ्लोर दिखता है और ये नॉन एसी होता तो इन दैट केस व्हाट हैपन, वी विल गेट अ हीट फ्रॉम फ्लोर सीलिंग। और वही चीज अगर नीचे होता है कि इसके इसके एक नीचे एक फ्लोर है और वो नॉन एसी है, सो देन ओनली वी वुड बी हैविंग हीट फ्रॉम द फ्लोर। सो इसके अंदर लिख देते हैं दैट इज योर हीट गेन फ्रॉम सीलिंग। इससे आप क्या निकालेंगे, हीट गेन फ्रॉम
सीलिंग से कितना हीट गेन होगा, इट विल बी कंसीडर्ड ओनली, it will be considered only when floor above is non-AC. Floor above is non-AC. ये तभी कंसीडर करेंगे जब हमारे से ऊपर वाला फ्लोर जो है वो नॉन एसी होगा। ठीक है, लेट अस सी है, आगे देखते हैं फोर्थ वन। अभी ये जो फ्लोर की हम सीलिंग की बात की, सेम थिंग इट इज एप्लीकेबल फॉर द फ्लोर। So that is basically your यही मैं कह रहा हूँ कि अपर फ्लोर जो है अगर वो नॉन एसी है तो वो भी हमारे लिए सीलिंग पार्टीशन हो गया। अगर हमारे से नीचे वाला फ्लोर नॉन एसी है तो वो हमारे लिए फ्लोर पार्टीशन हो गया। सो बेसिकली पार्टीशन को ही हम फर्दर एक डिफरेंट नेम में कह रहे हैं, दैट इज सीलिंग एंड फ्लोर। सो हीट गेन फ्रॉम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी योर हीट गेन फ्रॉम फ्लोर, हीट गेन फ्रॉम फ्लोर। So it will be considered only, it will be considered only when floor below is non-AC. When floor below is non-AC, हमारे से नीचे वाला फ्लोर अगर नॉन एसी होगा तो फिर हम इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा का सारा ट्रांसमिशन हीट गेन थ्रू वॉल एंड रूफ। वॉल एंड रूफ का ट्रांसमिशन हीट गेन हो गया। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो देन वी विल नॉट बी हैविंग एनी हीट फ्रॉम दैट, सो फ्लोर का लोड जीरो हो जाएगा। फ्लोर का लोड होने के लिए देयर मस्ट बी अ कंडीशन दैट वी हैव वन फ्लोर व्हिच इज बिलो आवर फ्लोर एंड दैट मस्ट बी नॉन एसी, वो हमारा नॉन एसी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। लेट्स सी द फोर्थ वन, दैट कम्स अंडर द रूम सेंसिबल हीट। The fourth one that we have, so that is basically our ओके। अब इसके आगे हम लोग जो देखते हैं दैट इज योर आउटसाइड एयर। आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट फॉर बाईपास्ड एयर। बाईपास्ड एयर से कितना हीट जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस सी है, ये क्या होता है, मैं एक बार इसको आपको आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट आल्सो। सो आउटसाइड एयर, लेट मी एक्सप्लेन दिस कि ये क्या होता है आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट फॉर बाईपास्ड एयर। ये क्या होता है, देखिए एज पर इंडोर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वी नीड सम फ्रेश एयर, हमें कुछ ना कुछ फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फ्रेश एयर जब हम कॉइल से लेते हैं, लेट अस एज्यूम लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कूलिंग कॉइल।
दिस इज आवर कूलिंग कॉइल, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फ्रेश एयर हम लेंगे। तो फॉर एग्जांपल उस फ्रेश एयर को जब हमने लिया, वो फ्रेश एयर आपके कॉइल के ऊपर जाएगा। वो फ्रेश एयर आप कहाँ से ले रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से आपको मार्क करके दिखाऊं कि कुछ फ्रेश एयर जो है आपके कॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा। यहाँ पे आ गया एयर विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कॉइल, और कुछ फ्रेश एयर जो कॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। तो इसको आप इस तरीके से डिटरमाइन करें कि एयर विच डज नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, air which does not comes in, ये सपोज दिस इज योर कूलिंग कॉइल और ये एयर का पार्ट है। तो जितना भी फ्रेश एयर हमें चाहिए, जितना भी फ्रेश एयर हमें चाहिए, सो उसमें से कुछ सारे के सारे फ्रेश एयर को आप लेके कॉइल के ऊपर डालेंगे, इस साइड से आप थ्रो करेंगे। सो वंस इट इज बीइंग थ्रोड, तो कुछ एयर का वो पार्ट होगा जो कॉइल के कांटेक्ट में आएगा, और जो एयर है कॉइल के कांटेक्ट में, कुछ एयर कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो एयर विच डज नॉट कम्स इन कांटेक्ट विथ कॉइल, कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, सो इट विल बी योर बाईपास्ड एयर। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज ट्रीटेड एज बाईपास्ड एयर, इसे हम बाईपास्ड एयर कहेंगे। और जो कॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा, द एयर विच कम्स इन कांटेक्ट विद द कॉइल, एयर विच कम्स इन कांटेक्ट विद द कॉइल, एयर विच कम्स इन कांटेक्ट विथ कॉइल, जो कॉइल के कांटेक्ट में आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कांटेक्ट एयर, उसे हम कांटेक्ट एयर कहेंगे, कांटेक्ट एयर कहेंगे। ये बाईपास्ड एयर जो आपने लिखा है यहाँ पे, इसके लिए आप यूज करेंगे बाईपास फैक्टर, और कांटेक्ट एयर के लिए आप यूज करेंगे कांटेक्ट फैक्टर, कांटेक्ट फैक्टर। सो यहाँ पे हम कौन सा कैलकुलेट कर लें, कांटेक्ट फैक्टर के लिए जो लोड आएगा, इसका जो लोड है जो कॉइल के कांटेक्ट में आया, इट विल पुट इट्स लोड, सो द लोड विल बी ऑन कॉइल, क्योंकि बाहर से आपने एयर लिया। फॉर एग्जांपल आउटसाइड इट इज 45 डिग्री सेल्सियस, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो 45 डिग्री सेल्सियस का एयर आपके कॉइल के ऊपर पड़ा, तो कॉइल का लोड बढ़ गया, क्योंकि कॉइल का वर्क क्या हो गया, टू कन्वर्ट दैट 45 डिग्री सेल्सियस इनटू 25 डिग्री सेल्सियस। कॉइल का ये काम हो गया, तो कॉइल के ऊपर लोड बढ़ गया। जो एयर कॉइल को बाईपास करके रूम के अंदर आ गया, तो इट विल इंक्रीज द लोड इनसाइड द रूम, सो इट विल इंक्रीज लोड इनसाइड रूम, रूम के अंदर लोड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। आपने अगर देखा होगा, रूम सेंसिबल हीट है, रूम लेटेंट हीट है, और आउटसाइड एयर लोड है। तो यही आउटसाइड एयर लोड जो है दोनों तरीके का है, एक आउटसाइड एयर लोड ऑन कॉइल, इसमें सेंसिबल भी होगा, लेटेंट भी होगा। इसी चीज को हम लोग आगे लिखते हैं। तो ये हो गया, I believe this is clear, that is outside air sensible heat for bypassed air। इस एयर का रूम सेंसिबल हीट निकालना है जो कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है। Let's calculate the third one. Next one that we have, that is point number E, that is basically your internal load. अब तक ये जो भी हीट जनरेट हो रहा था, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल लोड। तो इंटरनल लोड किन किन कारणों से होता है, लेट अस सी हियर। पीपल से होता है, दैट इज पीपल who would be residing in that particular application, so heat generation from people. Next one, it is your heat generation from light, sorry, so this is your light. And third one that we have, that is your equipment, so ये है, this is your heat generation from light,
heat generation, sorry, heat generation from people. This is your heat generation from light. लाइट से कितना हीट जनरेट हो रहा, और ये जो है दैट इज योर हीट जनरेशन फ्रॉम इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट से कितना हीट जनरेट हो रहा. सो वंस वी हैव ऑल दीज थिंग्स, सो इट इज योर रूम सेंसिबल हीट, यही हमारा रूम सेंसिबल हीट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट वन. सेकंड वन, इट इज योर रूम लैटेंट हीट. तो हमने रूम सेंसिबल हीट निकाल लिया. अब जो आते हैं सेकंड वन पे, दैट इज योर रूम लैटेंट हीट. रूम लैटेंट हीट, जिसे हम RLH कहते हैं. सो रूम लैटेंट हीट किससे होता है? लेट्स सी है, ये दो चीजों से होता है. सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट वो है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर बट देयर इज नो चेंज इन फेज. लैटेंट हीट क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट फेज में चेंज हो जाता है. जैसे लैटेंट हीट अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी से जो स्वेटिंग होता है वो लिक्विड में निकलता है, बट इट विल बी डिफ्यूज इनटू द एयर एंड इट इंक्रीजेस द योर रूम लैटेंट लोड. सो या तो ह्यूमन बीइंग से होगा या आउटसाइड से. एक और चीज इसके अंदर होगा, दैट इज योर इनफिल्ट्रेशन. आई विल जस्ट राइट इंटरनल लोड, आफ्टर दैट one more point it will be there, that is your infiltration. इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर है. फॉर एग्जांपल ये डोर अंडर कट से जो एयर बाहर से एयर अंदर आ जा रहा है उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे. ओके. लाइट की जो मैं लाइटिंग लोड, इट इज योर आर्टिफिशियल लाइट दैट वी आर यूजिंग. रूम के अंदर जो लाइट यूज कर रहे हैं, दिस इज द लाइट विच इज बीइंग used by us. 100 watt के bulbs, tube lights, CFL, LEDs, whatever that we are using. इन्फिल्ट्रेशन क्या है? दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द डोर अंडरकट्स और क्रैक्स. मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू डोर अंडरकट्स, movement of air through door through door undercuts. डोर अंडरकट से कितना मूवमेंट होगा? मतलब डोर में जो भी क्लियरेंस है या लीकेज है उसी से. तो क्लियरेंस इज आल्सो देयर, या क्रैक है, क्रैक से हम ले सकते हैं कितना हीट जनरेट होगा, वो चीज हम लोग इनफिल्ट्रेशन में काउंट करते हैं. अब आते हैं रूम लैटेंट हीट के लिए. लेट अस सी है फॉर रूम. No, bulbs are not the equipment, Mr. Keith, cause the bulbs and lights, that is something else. Equipment is something. For example, you are using any coffee machine, you are using any laptop, you are using any desktop, any printer, any fax machine, any equipments that is generating heat. So that is your equipment. Light is something which is different. Room latent heat, it is from three things basically. The first one that we have here, it is your people. That we have already. This is your sensible, it is calculated. So here it is your people load, so heat gain from people. Then it is your outside air load, outside air latent heat for bypassed air. bypassed air जो हो गया था, यहाँ पे हमने उसका sensible heat निकाला था. Here we have calculated the sensible heat, sensible. यहाँ पे हमने इसका latent निकाल लिया. And third one again, it is your infiltration. Infiltration. So इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा? इन सब से आपका, this is your latent heat from people. We can write it here. That is your latent heat
इनफिल्ट्रेशन भी वही है कि आउटसाइड एयर का जो मूवमेंट हो रहा है क्रैक से और एनी लीकेज और डोर अंडरकट्स, ठीक है। तो दिस इज योर रूम लैटेंट हीट। उसके बाद जो हमने लिखा था यहाँ पे पॉइंट, दैट इज योर आउटसाइड एयर लोड ऑन द कॉइल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया, आई जस्ट डिस्कस्ड एयर वेयर हेयर। एक तो वो एयर बाईपास्ड एयर का, बाईपास्ड एयर में वी हैव सेंसिबल एंड लैटेंट बोथ। यहाँ पे भी हमारे पास जो एयर बाईपास्ड हो गया था, ये सेंसिबल भी होगा इसका और लैटेंट होगा, तो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। जो बाईपास नहीं हुआ, जो कांटेक्ट में आया, इसके लिए भी हमें सेंसिबल लेना होगा एंड लैटेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए सेंसिबल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दिस इज योर सेंसिबल हीट, और इसका जो लैटेंट है वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड हेयर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, that is your outside air load on the coil। outside air load on coil, coil के ऊपर कितना लोड होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। so this is basically number 1, that is your outside air load, outside air sensible heat, outside air sensible heat on coil, outside air latent heat on coil, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, वो एयर जो कॉइल के कांटेक्ट में आया, वो कॉइल के कांटेक्ट में आया तो कॉइल के ऊपर लोड को इंक्रीज किया। सो कॉइल के ऊपर जो लोड को इंक्रीज किया, सो इट कैन बी योर राइट आउटसाइड एयर, दैट इज योर फ्रेश एयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। So this is basically if you're talking about outside air, so this is basically our fresh air। so हमें जो fresh air की जो requirement होती है, we can say it as a outside air also or ventilation air also, so once we have all these things, जब हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, then it is your we can इन्हीं सब का कैलकुलेशन को we say it as a heat load calculation। so in actually how we will do all these calculations, so that we will discuss in tomorrow's session। कल के सेशन में हम लोग देखेंगे। आज का सेशन ये, that is a brief about the heat load calculation। we don't have much time to go into depth, but कल के सेशन में हम देखेंगे इसी सारे calculations को एक्सेल शीट के ऊपर कैसे करते हैं, and with the help of one software what we call it as a HAP software, that is your hourly analysis program software के ऊपर किस तरीके से हम लोग करेंगे, so that we will see in tomorrow's session। सो एक्चुअली में हीट लोड कैलकुलेशन जो है इसी तरीके से होगा। वी हैव टू डू whatever पॉइंट्स दैट वी हैव रिटन, जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, दैट इज फ्रॉम room sensible heat। in that we have solar heat gain through glass, solar and transmission heat gain through glass, then transmission heat gain except wall and roof। इसके अंदर all glass है, partition, ceiling, floor is there। then we have an option of outside air sensible heat on for bypassed air, the air which does not comes in contact with the coil। एंड नेक्स्ट वन इट इज योर इंटरनल लोड, पीपल, लाइट, इक्विपमेंट, इन सबको ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा, और इनफिल्ट्रेशन इज आल्सो देयर। सो आफ्टर एडिंग ऑल दीज थिंग्स वी विल बी गेटिंग द रूम सेंसिबल हीट। फिर रूम लैटेंट हीट हमें कहाँ से मिलेगा, पीपल से, लाइट से, और पीपल से, आउटसाइड एयर से, इनफिल्ट्रेशन से। एंड लास्ट वन दैट वी हैव, दैट इज योर आउटसाइड एयर लोड ऑन द कॉइल, दैट इज बेसिकली द air which comes in contact with the coil। so I will just write here air which comes in contact with the coil, air which comes in contact with the coil, contact with the coil के जो कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। so today we will stop here।
Tomorrow we will continue with the calculations that we have. If you have any query. We will share the YouTube link in the Telegram group. Don't worry for that. Even we will inform you. You can also go through the our LinkedIn page also, Facebook page also. So there we'll be posting the link of all the videos sessions that we have. Okay. So thanks a lot for today. See you all in tomorrow's session where we'll be discussing the heat load calculation through Excel sheet as well as through the HAP software. So HAP software we'll be discussing. So don't miss the tomorrow's session. It will be a very much interesting session that how we can use the softwares to do all these calculations. Okay, thank you.